Hello student, once again welcome in Dr. Radhakrishnan Girls College Sri Ganganagar YouTube channel. This is Professor Meenal Kochar, Head of the Department Computer Science from Dr. Radhakrishnan Girls College. जैसा कि हमने previous class में कुछ network के बारे में discuss किया था, but और ये discussion हम आज data share कर रहे हैं. Why? Because you are very caring in nature. आप time पे like कर रहे हैं, subscribe कर रहे हैं, bell icon पे click कर रहे हैं और as you are very caring in nature आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे अपने फ्रेंड्स को डेटा शेयर कर रहे हैं. वी आर शेयरिंग दीज काइंड ऑफ द वैल्यूएबल डेटा इन दिस कोविड-19 पैंडमिक एंड एज my students or sweet students, you are now not forgetting that मैम हमने भी तो इसी मिशन में आगे बढ़ना है, इस कोविड से फाइट करना है और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है. सो आप अपने इस मिशन के अंदर हमारा साथ दीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल्स है सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ताकि सबको आपको ये बेनिफिट मिल सके. बिकॉज स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, बट स्टे विद द स्टडी for the success, and we are here for you every time. As we in our previous class we discussed about the DCN, that is the data communication and network. Here related to this topic we are going to work on another topic, the net surfing. Generally we use the terminology net surfing, but student एक बात कहूँगी, as now you are my student, you are the student of Dr. Radhakrishnan Girls College, तो हमने अपनी prestige एक decorum को बना के रखना है. We generally use the term मैम विंडो उड़ गया, right? मैम सर्च मारा था, no, मैम वो डिब्बा आया था उसमें ये लिखा हुआ था. So you should use right terms, just like मैम वो डायलॉग बॉक्स आया था, ओके कैंसल बटन्स थे, राइट. आफ्टर दैट मैम नेट सर्फिंग किया था, राइट, नॉट सर्च मारा था. एंड मैम विंडो उड़ गया, नो, विंडो करप्ट हो गया. दीज आर द सिंपल थिंग्स और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको हर चीज़ पे करेक्ट करें, क्योंकि जब आप कई बार इंटरव्यू में होते हैं, किसी पर्सन के सामने होता है, वो यंगर हो सकता है, वो आपसे सीनियर हो सकता है, बट यू शुड यूज़ द राइट टर्म्स इन फ्रंट ऑफ एनीवन बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग अस, राइट. एंड एज आवर टॉपिक इज नेट सर्फिंग, we discuss about the web browser, and now we are going to work on the search engine. What is the search engine? Actually in daily life we use search engine or the web browser to search various kind of the topics that give you various kind of the encyclopedia or the precious knowledge. और यहाँ पर जब हम browser का use करते हैं just like the Google Chrome, and after that हमें जो उस destination तक पहुँचाता है वो होता है search engine. And you very well know different kind of the name or the examples of the search engine, and if you don't know so doesn't matter, हमने आपका एक एक concept clear करना है. So let's take a look on the various types of the search engine. Sir, slide please. As in this slide you can see various types of the search engine. A search engine is an online tool that searches for result in its the database. ये अपने database में से जो आपने दिया है उसके according search करता है. Search engines find the results in their database and sort them, make an order list of these results based on the search engine algorithms, and it can do various kind of the task just like the crawling, thus like the indexing, and just like the creating result. In front of you, as you can see in this slide, the Google, Yahoo, then MSN, the Google, Yahoo, MSN, Alta Vista, Ask, many kind of the search engine. And do you know the Microsoft जो सॉफ्टवेयर में अपना एक मुकाम रखती है, तो इसी तरह से ये मैम ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके मैम विंडोज़, ओके MS ऑफिस, ओके मैम yes, MS Office, this is also the product of the Microsoft, जो अपने आप में एक बड़ा पैकेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS Office है. तो मैम इसका वेब ब्राउज़र, एब्सोल्युटली राइट, Microsoft
ने अपना एक वेब ब्राउज़र, आप मानेंगे एक पूरी की पूरी हिस्ट्री जो थी आज उसने रिमूव कर दी है, और मार्केट में जो नियर अबाउट 1983 में एक जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम आया, वो टाइम के अंदर वेब ब्राउज़र जो हमारे पास था वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर पास्ट। आप सभी ने आइकन में ई देखा होगा डेस्कटॉप के ऊपर, इट वाज इंटरनेट एक्सप्लोरर। बट नाउ विंडोज 10 जो हमारे पास सामने आया, ये आया आपके पास एक एकदम न्यू वेब ब्राउज़र लेके, जिसने मैम वी आर इन द 2020 एंड फ्रॉम द 1983 और 1985 टाइम पीरियड, सो दिस इज रियली अ वेरी लॉन्ग जर्नी। और वो कौन सा ऐसा वेब ब्राउज़र आया जिसने इस हिस्ट्री को एकदम रेवोल्यूशनरी चेंज कर दिया, एंड द नेम ऑफ दैट वेब ब्राउज़र इज यस Microsoft Edge browser, one of the most important question according to the competition and no doubt the updated knowledge. Now take a look on the search engine. जो आपने अभी search engine देखे, हमने आइडिया लिया कि आखिर ये होता क्या है। स्टूडेंट, एक हम बात ध्यान देंगे कि हर चीज़ का ये नहीं है कि मैम सिलेबस में ही रहना है। जैसे टाइम टू टाइम हम अपने स्टार से, आइकॉनिक स्टार से आपको मिलवा रहे हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, एंड why they are cracking the exam, because you need to know everything about your scenario, about your stream. ये हमने एक, जैसा मैंने आपको कहा, think out of box। तो मैम इतना हमारे सिलेबस में नो, देर इज़ नो लिमिट। आपके नेटवर्क आ गया, इट मीन्स अगर एग्जामिनर इसमें से URL क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, डोमेन क्या होता है, सो एग्जामिनर इज नॉट रॉन्ग हेयर, बिकॉज ये का हम क्राइटेरिया नहीं सेट कर सकते। दीज आर द बेसिक क्वेश्चन एंड बेसिक कंसेप्ट। तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि आखिर में मैम ये URL होता क्या है। स्टूडेंट, पता आप सबको होता है, बस थोड़ा सा एक टर्म वो नहीं पता होती है या नहीं पता है, तो हम आपके साथ हैं। कैसे? जैसे हम URL मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हम जनरली ये टर्म यूज करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे अगर आप देखें URL, आप जनरली जब कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, सर्फिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम जैसे एग्जांपल लें MGSU राइट, एंड SBI ऑनलाइन नॉर्मल एग्जांपल, तो यहाँ पर ऊपर एक एड्रेस आता है HTTPS राइट। देन आफ्टर दैट आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स रेडी होते हैं, www.sbionline, ये तरह से पूरा एड्रेस चलता है, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में एड्रेस रेफरेंस बोलते हैं, और आप इसे बेस्ट लैंग्वेज में URL कह सकते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, तो इसमें सबसे पहले आता है वो है प्रोटोकॉल्स। जनरली आप पहले देखें ना, तो यहाँ पे आता था HTTP, सरप्राइजिंग, तो कीन ऑब्जर्वर बनना है कि मैम URL में ये ध्यान नहीं दिया, और अब भी देना है। नॉट सिक्योर इंडिकेशन आए, इट मीन्स हमने प्रोटोकॉल्स पे स्लाइड सा ध्यान देना मिस कर दिया है। इसी तरह से तो ट्रांजैक्शन है जो कई बार हम क्रैकर्स के हाथ में आ जाते हैं, अवर सिस्टम पेनिट्रेट बाय दीज काइंड ऑफ द साइबर क्रिमिनल। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा उसे अंडरस्टैंड क्लियरली नहीं कर पाते हैं। तो अब आपने करना है, आपके जो URL आता है, ये एड्रेस आता है, इसके अंदर स्टूडेंट आपके पास ये URL प्रोटोकॉल से शुरू होता है। ओके मैम, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म रेडी हो गया। बट मैम हमने कहीं ध्यान दिया HTTPS भी आता है, एब्सोल्युटली राइट। इन अब से जो आपके पास हाइपर लिंक ये URL आता है, ये URL ऑलवेज स्टार्ट विद द HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, S4 सिक्योर। यहाँ पे पैडलॉक साइन आता है ग्रीन कलर का, जो आपको इंडिकेट करता है यू आर वर्किंग ऑन एब्सोल्युटली रिलायबल साइट। जब आप SBI बैंक में या किसी भी बैंकिंग सिस्टम में जाते हैं, आपको एक ATM किट दिया जाता है जिसमें आपके पास पासवर्ड होता है। चेक द प्रोटोकॉल्स ऑफ दिस किट। यहाँ पे सबसे पहला जो रूल होता है या आपकी इंस्ट्रक्शन होती है, दिस इज when you work on the online banking, so always check the URL that should
begin with the HTTPS। जब भी आप कोई URL ऑन करते हैं तो चेक करिएगा कि आपकी बैंक का जो स्टार्टिंग प्रोटोकॉल है वो HTTPS होना चाहिए। लीजिए, नॉर्मल डिस्कशन के अंदर आपने बहुत अच्छा आइडिया लगा लिया कि ओके मैम, अब से हमें ये भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि अब इसमें ये नहीं कह सकते कि मैम ये सिलेबस में नहीं था। दिस इज योर रिक्वायरमेंट, दीज आर योर बेसिक थिंग्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So here we discussed about the net surfing, after that the search engine. Now take a look on the URL जिसमें हमारे पास डोमेन होते हैं, सब डोमेन होते हैं, टॉप लेवल डोमेन होते हैं। What these are? So take a look on the next slide. Sir, slide please. As you can see in this slide, वेरी नाइस स्लाइड, जिसमें हमने सिंटैक्स को भी मैम स्लाइड में रिप्रेजेंट कर दिया है और इतना अच्छे फिगर से हमने इसे दिखाने की कोशिश की है। URL, यस मैम ने कहा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसमें आपको हमने बताया सबसे पहला सेगमेंट होता है दैट इज द प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आफ्टर दैट वर्ल्ड वाइड वेब, दिस इज द सब डोमेन। आफ्टर दैट Google is the domain name here, and after that dot, then com, ये है top level domain। Here you can see the domain, and we use in our daily life various kind of the domains। These domains are the, आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन साइट्स हैं that we use the domain name for work on a particular website। Thank you sir। Here we have different kinds of the domain name, and this is depend on our organization, on our website or on our work। So what is the domain here? URL के अंदर हमने domain, this is another important question, domains। आखिर ये domain होते क्या हैं? Just like आपने अभी URL में देखा, yes, domain name, top level domain is .com, very nice। Here the domain is .com, .org, wow, yes, gov, government, organization, commercial, then .ac, academic, मैम कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, .edu, education। So these are the basic kinds of the domain। .com, commercial। After that .org, organization। As I told you, the domain type is means we use the domain type according to our requirement, कि किस तरह का field हमें चाहिए, किस में हम work कर रहे हैं। After that gov, government, and after that ac, academic। Here the AC is the academic, government, organization and commercial। EDU, education, and after that your domain type, after that this URL, your file start according to your searching requirement। But here we use the domain after the top level domain. These domain depends on your country, means you belong to which country, just like, and it is basically consist of 2 letters, just like IN, India, then UK, yes, United Kingdom, after that US, United States. These all are the search engine segment. After that the URL, and the URL segment after the top level domain, the country means United States, United Nation, India, Australia, Canada. So these 2 letters
differentiate according to the country. After that, the top level domain. These are differentiate according to your work, according to the criteria, which kind of the task or the website you need. आप क्या काम कर रहे हैं, आप कमर्शियल रिलेटेड हैं, आप कोई संस्था या ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं, कोई सरकारी या गवर्नमेंट वर्क है, एजुकेशन से रिलेटेड है. सो दीज आर द वन मोर थिंग, मिल, डॉट मिल, military. So these are the basic kinds of the domain. Here, next take a look on the email. This is our next segment, the email. One of the most important question. एंड हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि मैम ईमेल में ये इतना ही तो है सिलेबस में, इतना नहीं है. हमारे स्टार्स ने आपको बोला कि हमने 80% जो हमारा पेपर आया था, इट वाज बेस्ड ऑन द कंप्यूटर एंड नो डाउट द मीन्स द टेक्निकल क्वेश्चंस, हाउ यू कैन फाइट और द क्रैक दीज क्वेश्चंस बिकॉज योर कंसेप्ट आर क्लियर. आपने सिर्फ एक वो दायरा नहीं बनाया था, आपने अपने कंसेप्ट क्लियर किए और उस रीजनिंग के अकॉर्डिंग आपने आंसर क्रैक कर लिए और हमने एग्जामिनर से कई कदम आगे रहना है. ओके, द ईमेल, वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो हियर वी यूज द ईमेल. यस मैम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो हम सभी डेली लाइफ में यूज करते हैं. हियर ई इज द इलेक्ट्रिकल एंटरप्राइज. मैम इतना ध्यान नहीं दिया, या मैम दिया बिकॉज you are the student of Dr. Radhakrishnan Girls College. E for electronic. Here E is the electronic. मेल मतलब संदेश. एक सिंपल भाषा में कहें तो मेल का मतलब होता है संदेश. ईमेल मतलब जब आप इलेक्ट्रॉनिकली किसी को संदेश भेजते हैं, जस्ट लाइक व्हेन वी ट्रांसफर आवर message or the mails on a network area, so these kind of the message और ये संदेश ईमेल कहलाते हैं. वन इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट, पता होना चाहिए कि ईमेल का डेवलपमेंट किसने किया था, कब हुआ था. तो ये पता होना चाहिए स्टूडेंट आपको कि ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था कि हम मैम जनरली एक लेटर पोस्ट करते थे, लिखते थे और उसके बाद ये 1-2 दिन में पहुंचता था. मैम रजिस्ट्री करते थे, ये चीज़ें हैं, स्पीड पोस्ट किया नियर अबाउट मान लीजिए कम से कम माने 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ इस चीज़ का लगा रजिस्ट्री का. ओके, ये एक्नॉलेजमेंट 2-3 दिन में हमारे पास वापस इसका एक्नॉलेजमेंट आता है, रिप्लाई आता है. बट दिस इज़ रियली अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इन दिस टाइम वी शुड यूज़ द स्मार्ट सर्विसेज एंड वी आर यूजिंग. सो ईमेल, अभी आपने कोई स्पीड पोस्ट कराना है, ओके ईमेल की फॉर्म में सेंड करिए ना. कोई लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, कोई थीसिस हैं, कोई मींस हमने कहा डेजर्टेशन है, एनीथिंग. अब आपको हमारे पेपर्स हैं, ऑनलाइन आया, तो ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स हैं. तो हमने ईमेल में अटैचमेंट बटन पे क्लिक किया जाता है, जिससे आप वो जो फाइल्स हैं, वो वीडियो हैं, वो इमेजेस हैं, अटैच करते हैं विद इन क्लिक. दिस इज जस्ट नैनो सेकेंड पीरियड. आपका वो जो डेटा होता है वो सामने रिसीवर को रिसीव हो जाता है और वहाँ से हमारे पास रिप्लाई आ जाता है. तो ये चीज़ मतलब जो मैम 2-3 दिन लगते थे, वो चीज़ विद इन सेकेंड, 2-3 सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाती है. तो दिस इज़ रियली अ वेरी नाइस अचीवमेंट. और हमें ये पता होना चाहिए हु वाज द पायोनियर और द फादर ऑफ ई मेल. ये थे पायोनियर ऑनरेबल रे टॉमलिंसन. क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी, मेरे स्टूडेंट को हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. क्यों? ब्रेन टीजर मैडम की तरह एक क्यूरियोसिटी हमेशा लाइफ में रखिएगा, जानने की जिज्ञासा हमेशा होनी चाहिए. सो रे टॉमलिंसन, द फादर और द पायनियर ऑफ द ईमेल, एंड दिस ईमेल वाज फर्स्टली, जस्ट अ मिनट, मार्कर में प्रॉब्लम है, 1 मिनट. तो ये जो फादर थे ईमेल के, ये थे रे टॉमलिंसन. और यहाँ पर हम बात करें तो आपके सामने हम एक स्लाइड लेके आ रहे हैं जिसमें हम क्लियर करते हैं कि आखिर ये वर्किंग ईमेल का कैसे दिखाई देता है. और इन्होंने जो ईमेल का एक आप कह सकते हैं परफॉर्मा या जो स्ट्रक्चर बनाई थी, उसमें किस तरह से 2 CC
BCC means receiver carbon copy, blind carbon copy. After that subject, then the body part where we describe about the detail or the matter that we are attaching our file by use the attachment button. And here we also use a snooze option. ये काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होगा पर अब आइडिया होना चाहिए कि snooze एक ईमेल के अंदर एक नया ऑप्शन आया है और इसका मतलब आप समझ सकते हैं रिमाइंडर, जो आपको रिमाइंड कराता है कि आज आपकी मीटिंग कितने बजे है, एग्जाम कितने बजे है, क्लास कितने बजे है. सो snooze is just like a reminder. So let's take a look on the slide. After that we will discuss this in detail. Sir, slide please. As here you can see the email dialog box. Here we have different kinds of the options and the buttons. जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर अलग अलग तरह के बटन्स यूज़ हुए हैं और इनके अंदर अगर हम बात करें तो इन बटन्स में जो हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर 2 सबसे ऊपर आ रहा है, फिर CC आ रहा है और उसके बाद अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ब्लाइंड कार्बन कॉपी सब्जेक्ट आ रहा है, नीचे ब्लू कलर से एक सेंड बटन आ रहा है जिसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका जो ये ईमेल है, ये संदेश है, ये रिसीवर तक पहुँचता है. नीचे एक क्लिप साइन आ रहा है, इस क्लिप से जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो फाइल अटैच होती है. अगर आप लेफ्ट साइड में देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जस्ट लाइक द इनबॉक्स, कंपोज, ये अलग अलग ऑप्शन है, ड्राफ्ट, ट्रैश, स्पैम. These are the different kind of the options related to the email. यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान देनी है कि वास्तव में ये ईमेल जो है अपने आप में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर रख रहा है और इसके अंदर हम डिफरेंट काइंड्स के बटन्स यूज़ करते हैं और इन बटन्स के अकॉर्डिंग हम अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं कि आपने वो ईमेल किस किस को सेंड करना है और किस तरह से ये ईमेल आपने सेंड करना है. तो अब इसके ऊपर जो इसके मतलब आप कह सकते हैं पार्ट्स हैं, इन पे हम डिस्कशन करते हैं कि आखिर ये क्या क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं. थैंक यू सर. रे टॉमलिंसन, द पायोनियर ऑफ द ईमेल. सबसे पहले इन्होंने जो फर्स्ट ईमेल मीन्स आप कह सकते हैं सेंड किया था, इट वाज द ईयर 1971 टू राइट नाउ 2020. दिस इज रियली अ वेरी लार्ज टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड. आफ्टर दैट फर्स्ट टाइम मैम इन्होंने किसे सेंड किया था? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो डू यू नो स्टूडेंट, द फर्स्ट नेटवर्क इज द ARPANET. वाओ, व्हाट अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सबसे पहला जो नेटवर्क था वो ARPANET था. ARPANET इज द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी network. Advanced Research Project Agency Network. This is the ARPANET and launched in the 1971 by the Honorable Pioneer Ray Tomlinson. And for the ARPANET, what is the ARPANET? Advanced Research Project एजेंसी नेटवर्क. और ये नेटवर्क सबसे पहले किस एरिया में, दिस नेटवर्क फर्स्टली यूज इन विच एरिया. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत बार कंपटीशन में और इंटरव्यू में पूछा गया है कि सबसे पहला नेटवर्क किस एरिया में यूज किया गया था. इट वाज यूज्ड फर्स्ट टाइम इन विच सेक्टर. लीजिए ऑप्शंस बनाते हैं. लेट्स टेक अ लुक ऑन दिस. A, B, C and D. ओके. बैंकिंग, okay, or education, medical, maybe, or defense. I don't know, but let's check. Banking, education, medical and defense. So the right answer is सबसे पहले जो नेटवर्क यूज किया गया था, इट वाज यूज्ड इन डिफेंस. अब आपको ये चीज़ याद रहेगी कि सुरक्षा के लिए
US आर्मी ने, यूनाइटेड स्टेट आर्मी ने फर्स्ट टाइम ARPANET नेटवर्क का यूज़ किया था और इस नेटवर्क को डिफेंस, सुरक्षा के लिए या मिलिट्री में यूज़ किया गया था। वेरी नाइस क्वेश्चन। अब हमने कुछ इसके टाइटल्स या बटन्स देखे, उनको चेक करते हैं कि इनका आखिर रोल क्या है। सो स्टूडेंट, 2 CC, BCC, after that inbox, right? Very simple points, inbox. Then subject, each and every term should be clear. Okay ma'am, if we want to send mail, means कुछ नया मेल सेंड करना है, so we use the compose. Then मैम आपने कुछ snooze भी बताया था, yes snooze. Then trash, अभी आपको इनको वर्किंग भी बताते हैं कि आखिर ये कैसे वर्क करते हैं. Then draft and spam means the junk. Here take a look on these buttons. These are used for different kind of the working. To receiver, the address of the receiver, and you know that the email address always take the at, just like my email address is, for example, Meenal K Kochhar at gmail.com. So here ma'am, yes, .com domain, after that Gmail at, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे. ईमेल एड्रेस हमेशा एट साइन को फॉलो करता है. दिस इज द यूजर नेम, योर कंपनी नेम, आफ्टर दैट at sign, then the Gmail, then .com is the commercial. After that, now the CC is the carbon copy. Now the BCC, blank carbon copy, blank और blind carbon copy. अभी डिस्कस करके क्लियर कर देते हैं कंसेप्ट. blind carbon copy. After that, inbox means received mail. Subject means title. देखिए शॉर्ट एंड आंसर, बस ये से हम अपने आप पेन हमारा दौड़ता है एग्जाम में. क्यों? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हैं हमारे. आफ्टर दैट, और जैसा कि आपको हम स्मार्ट क्लास से पढ़ा रहे हैं, मैंने मेरे स्टूडेंट को ईमेल आईडी सभी स्टूडेंट का बनवा दिया है ताकि हम टाइम टू टाइम उनको मेल कर सके, पीडीएफ सेंड कर सके, अटैचमेंट और फिगर सेंड कर सके. तो ये ईमेल आईडी कैसे क्रिएट कर रहे हैं हम? बाय द ऑनलाइन क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस, एंड नाउ यू ऑल हैव द ईमेल एड्रेस. दिस इज़ वेरी नाइस के हमें लग रहा है कि शायद हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हो रहे हैं. आफ्टर दैट, कंपोज. इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन द न्यू मेल और इफ़ यू वांट टू सेंड न्यू मेल, आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो उस संदेश के लिए हम कंपोज बटन का यूज़ करते हैं. रिमाइंडर, मेरा क्लास इतने बजे है, आज ये मीटिंग है, सो द रिमाइंडर. ट्रैश, क्रैश, इस वर्ड से याद रखेंगे. ट्रैश, क्रैश मीन्स द डिलीटेड मेल. डिलीटेड मेल ऑलवेज स्टोर इन द ट्रैश. डिलीटेड मेल. ड्राफ्ट इन द सेंस कई बार होता है कि हमारा मेल पहुंच नहीं पाता है. इट मीन्स दिस इज द प्रॉब्लम इन द ईमेल एड्रेस और एनीथिंग. सो दीज काइंड ऑफ द मेल ऑलवेज स्टोर इन द पेंडिंग सेक्शन. एंड फाइनली, स्पैम. आपका जो इनबॉक्स होता है स्टूडेंट, इसमें यकीन मानेंगे 80% ईमेल्स जो होते हैं, दीज आर द जंक और द स्पैम. मीन्स यू कैन से द अनवांटेड मेल, हमें जिनकी ज़रूरत नहीं थी बट एडवर्टाइजमेंट के लिए, या आप कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनीज उन्हें हमें सेंड कर रही है. सो दीज आर द अनवांटेड मेल, एंड इन अनदर लैंग्वेज यू कैन से द जंक मेल. इंपॉर्टेंट टर्म जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द जंक मेल? सो दीज आर द स्पैम, अनवांटेड, अवांछनीय ईमेल. मैं अपना ट्राई बेस्ट कर रही हूँ कि आपके सामने हम बायलैंग्वेज यूज़ करें, और नो डाउट आपने हिंदी इंग्लिश दोनों में अंडरस्टैंड करके अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, फॉर्म कुछ भी हो. सो दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ द बटन्स इन द ईमेल बॉक्स. यस,
आज का मैम रेमेडी ऑफ द सक्सेस. So let's take a look on the remedy of the success. Today's remedy of the success is yes कुछ नया. यहाँ पर आज की रेमेडी ऑफ द सक्सेस हम लेंगे जो आपने हमेशा ध्यान रखनी है. इम्पॉर्टेंस ऑफ चेयर. आप स्कूलिंग से अब बहुत बड़े मुकाम पे जाने वाले हैं. हमने एक बहुत अच्छा एक मिशन, एक सीट जो आज से ली है और उसको उस लेवल तक लेके जाना है. सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द चेयर. ये चेयर वो है जिसमें आपको कई बार होगा कि मतलब एक डेजिग्नेशन की बात करें. देखिए 2 चेयर है, बिल्कुल सेम है. अगर हम बैठ रहे हैं उस चेयर के ऊपर, ये लीजिए राइट, पापा आए, आप उस पोज में बैठे हैं पास वाली चेयर पे, लेकिन एक दूसरा एटिकेट हो सकता है कि आप बढ़ के दें उस चेयर को, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ चेयर. ओके, जैसे हम मतलब मीटिंग में बैठे हैं, अचानक प्रिंसिपल सर आए, वो हमें कोई नहीं कहेंगे कि नो बैठिए बैठिए, और अगर हम खड़े नहीं हो रहे हैं, दिस इज़ अवर पोस्चर. सो दिस इज़ नॉट द राइट वे. आपको उस टाइम में आपके एटिकेट्स होते हैं कि आपको वो चेयर देनी चाहिए, पर उनका रिप्लाई ये होगा कि नो मैम, यू आर द एचओडी ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, तो आपका ही ऑफिस है, आप यहाँ बैठिए, पर ये आपका एटिकेट है, आपकी रिस्पेक्ट बनती है ये. और आफ्टर दैट इन अनदर थिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ चेयर, जब आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे भी ये ध्यान रखिएगा, आपका जो हक है वो काफ़ी लोग लेने की कोशिश करेंगे, उस चेयर को छीनने की कोशिश करेंगे. डजेंट मैटर, कोई आपका हक ले सकता है, वो हुनर नहीं ले सकता है. विद दिस एंथुजियाज्म वी विल मीट वेरी सून इन नेक्स्ट क्लास. सो ऑल द बेस्ट for your bright future and God bless to all of you. Don't forget to like, subscribe and share these kind of the precious knowledge to all the friends. Thank you so much.